Capital budgeting means acquiring inputs with long-term returns. ऐसी कोई प्लांट या मशीनरी में इन्वेस्ट करना जो आगे चल के लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स प्रोजेक्ट से आने चाहिए. ठीक है. So you are buying tangible assets. Capital expenditure means you are buying tangible fixed assets, and this expenditure you are making for long-term returns from the fixed assets. You will produce the different goods from the plant and machinery, and you will sell these goods in the market. So the management is concerned about the machinery, which machinery will be proper, and how we can earn more profits by selling goods into the market. So what is capital budgeting? It is the process a business undertakes to evaluate major projects. You have many options with you. You have many investment alternatives. You can start one business, you can start other business. So capital expenditure is very big amount. If you set up a factory, you need a lot of money, right? And it is a long-term project. So first you have to select the proposal which will give you future benefit. So what is capital? Capital means investment in the machinery. And you're going to start up a new factory. It is a very big investment, and the projects will require big investment. You need to approve the project or reject the project by calculating the returns from the project. Okay, so you are going to do financial planning, financial analysis of this project. Long-term financing, you require fixed assets, and fixed assets means all the tangible and intangible assets. First you will forecast what is the need, कौन सी machine आपके लिए सही रहेगी. You will find out from the market. Okay, and you have to take the decision after using some techniques. What techniques are there, I will tell you. So capital budgeting is the role of top management. Top and middle level management, they will take the decision that we are going to expand our business. We need this much money, and this machinery will give us good returns. So in this way, the top management will take the decision. Now there are some techniques actually used in practical scenario. These budgeting techniques are grouped in two categories. There are two categories. First category is non-discounting cash flow. Non-discounted cash flow, this is the traditional technique. ये चलते आ रहे हैं बहुत सालों से. पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत सालों से जूनी टेक्निक्स है. लेकिन जो आज टेक्निक्स यूज होती है ना, वो है DCF, NPV एंड IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये तीनों जो है सेकेंड कैटेगरी के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो में ये प्रैक्टिकली यूज होती है. और ये जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है. ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी इसको बोला जाता है. सॉरी. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट्स में होता है, या एक्सपांशन के लिए होता है, या आप किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है. दूसरी, कभी कभी हम लोग पहले मैन्युअली वर्कर्स होते थे, लेबर रखते थे हम लोग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, जो हमने उसको कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया. इसलिए भी हम लोग को पैसे लगेंगे. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट्स. जब आपकी कोई टेस्ट ली जाती है, तो जब GST सिखाया तो उसका टेस्ट होगा जब, तो आपको इवेल्युएट किया जाता है किसको कितना समझ में आया है. ठीक है, किसमें हाई रिटर्न, किसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. तो ये इवेल्युएशंस हम लोग करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी हम मशीनरीज
प्रोजेक्ट्स या फिर एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पे इवैल्यूएशन में एक्सेप्शन होता है और रिजेक्शन होता है। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो एक्सेप्शन होगा, और अगर रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं तो उसका हम लोग रिजेक्शन भी कर सकते हैं। अब काफी बार ऐसा भी होता है कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों अच्छे हैं, two projects, both are good, you want to start both the projects but you have limited resources। कैपिटल बजटिंग में आपके पास रिसोर्सेज, एक ही मशीन के लिए पैसे हैं आपके पास, आप दोनों प्रोजेक्ट में आधा आधा इन्वेस्ट करके मशीन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपको सप्लायर बोलेगा क्या दोनों मशीन ले ले, आधा आधा पैसा दे दे। आपको दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, आपको लग रहा है इसमें भी अच्छा रिटर्न है इसमें भी अच्छा है, ऐसा नहीं कर सकते। सो वी कैन सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। अगर आप ए प्रोडक्ट का मशीनरी स्टार्ट कर रहे हो तो बी प्रोडक्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। ओके, सो यू कैन स्टार्ट वन ओनली एट अ टाइम। यू कैन स्टार्ट बी और यू कैन स्टार्ट ए, और यू कैन स्टार्ट ए, you can you may not select B for the project. Okay, so you have to accept some projects, you have to reject some projects. So what is capital expenditure? Capital budgeting means planning for the expenditure। प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा उसका सब मान के चलना है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन होगा, मशीन का लाइफ कितना है ये भी देखना है। दोनों का मशीन का लाइफ कॉमन है तो कंपैरिजन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, दोनों मशीनरी की सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं दो मशीन को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरा मशीन का लाइफ है सपोज 5 years, उसके मशीन का लाइफ है 3 years, उसको सस्ता मिला वो मशीन उसको थोड़ा सस्ता मिला, मुझे थोड़ा महंगा मिला, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसका मशीन मेरे से कंपेयर करूं, तो ये गलत है। ठीक है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी सेम of two machines and the cost of investment of two projects should be same, and you can compare the returns, उसकी प्रोडक्शन कैसी हो रही है, उसके सेल्स कैसे हो रहा है, फिर आप अपने से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, capital expenditure is considered as a fixed asset। You are going to buy a fixed asset that is going to depreciate over a period of time। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है, उसी के चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लानिंग, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग विद एनालिसिस, ओके, एंड डिसीजन मेकिंग after checking the accepting the project or rejecting the project, we can take the decision on capital expenditure, because it is a very big amount which we are going to invest into the sophisticated machines। ओके, सो प्लांट का लोकेशन, प्लांट का प्रोसेस क्या है, whether the plant is fully automatic or semi automatic, which new product lines are going to be produced from this machinery। So before purchasing new machine, planning, executing, planning and evaluating and then executing, this is the step by step process। okay, and you have to study the environment। जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें जो भी आउटपुट सेल करोगे, जो फिनिश गुड्स आप सेल करोगे उसका प्राइस भी आपको मिलना चाहिए। सो यू विल स्टडी द प्रोजेक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड यू विल टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट फाइनेंस मैनेजर्स। फाइनेंस मैनेजर को प्रोजेक्ट आइडियाज में इवैल्यूएशन करने में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो एस्टिमेटेड फ्यूचर रिटर्न्स दिए रहेंगे। एस्टिमेटेड इनकम मतलब अगर इस प्रोजेक्ट में हम 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 इसमें से रिटर्न्स आएंगे। वी हैव टू एस्टिमेट द फ्यूचर इनकम, और कभी कभी वो फ्यूचर इनकम जो हमने एस्टिमेट किया है उससे बिल्कुल अलग होता है। प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो बिल्कुल अलग ही सिनेरियो दिखता है। उसके बाद आता है पे बैक पीरियड। जो फर्स्ट टेक्निक है इसमें नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर
वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से डिवाइड किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। This is the simple way to budget for a new asset. पानी पानी। A company plans to buy a new IT server. First, we will start. This is the simple way to budget for a new asset. Payback method is deciding how long it will take a company to pay off an asset. जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कब रिकवर होगी। एक सिंपल वर्ड है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को होता है ना कितने सालों में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा। In which year I will recover my money. Suppose a company plans to buy a new IT server for rupees 5 lakhs and the server is predicted to generate rupees 50,000 cash each year. This project investment is 5 lakh and every year you will earn 50,000 from the project. IT सर्वर का प्रोजेक्ट है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50,000 एक साल का अर्निंग्स है एवरी ईयर है। एंड द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 10 ईयर्स में पूरा आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। अगर 10 साल वो सर्वर प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है तो ये 50,000 रुपीज आपका रिकवर होगा 10 ईयर्स में। सो यू कैन कैलकुलेट द number of years. Rupees 50,000 cash flow over 10 years totals 5 lakh. So the formula for this is original investment upon annual cash inflow after tax. The quicker the payback period is, the quicker the company is able to recover the cost of new project. Note down. All of you note down this formula. This is a non-discounted cash flow method. First, payback period. Payback period is equals to original investment divided by annual cash inflow after tax. जितना छोटा होगा ना पेबैक पीरियड, जितना कम होगा, इसका आंसर हमेशा ईयर्स में आता है। हाँ, जो भी आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा। ओके, so first numerator is cash outflow. Investment means cash outflow and denominator is cash inflow. Inflow from the project. इसका रिकवरी हम लोगों को देखना है, प्रोजेक्ट का रिकवरी का कब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का रिकवरी जो लास्ट एग्जांपल था
उसका 10 years में हो रहा था. ओके, विद दिस information, outlay, cash outlay is 5 lakhs and 50,000 is cash inflow. So answer is 5 lakhs original investment of the project and 50,000 is the inflow. That means you can recover your investment, 5 lakh investment, by earning every year 50,000. You will earn 50,000 every year and you can recover your investment in 10 years. In 10 years, you can recover your investment. What if the investment is fixed 5 lakh in the starting, but annual cash inflow is uneven? हमेशा 50,000 फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा ना, इनकम कभी भी अनइवन भी हो सकता है. तो उस केस में हम लोग को क्यूमुलेटिव करना पड़ता है कैश इनफ्लो का अलग अलग. अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10th ईयर तक कैश इनफ्लो अलग अलग आ रही है, यानी कि फर्स्ट ईयर में इनकम 50,000 आया, सेकंड ईयर में इनकम 20,000 आया, थर्ड ईयर में लॉस हुआ, फोर्थ ईयर में 70,000 इनकम हुआ, तो पहले के 3 साल में बहुत फ्लक्चुएशंस हुए. मतलब पूरे के पूरे 10 इयर्स में अनइवन कैश इनफ्लोज अगर होती है तो हम लोग को अलग से करना होता है इसको क्यूमुलेटिव करके, और फिर हम लोगों को पे बैक देखना पड़ता है 5 लाख कहाँ पे रिकवर हो रहा है, कौन से ईयर में रिकवर हो रहा है 5 लाख जो हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है. तो इसमें फिर अलग तरीके से हमें करना पड़ता है पे बैक पीरियड. ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अनइवन कैश फ्लोज ही होता है, आपको पता थोड़ी ना कितना सेल होगा. तो ये जो मेथड है ये सिर्फ समझाने के लिए है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैश इनफ्लोज अनइवन होती हैं, अनसर्टेन होती हैं. किसी भी प्रोजेक्ट में फिक्स रिटर्न्स कभी भी नहीं मिलता है. All of you note down this question.
अभी ट्रेडिशनल मेथड पेबैक होता है, ट्रेडिशनल मेथड यानी पेबैक पीरियड आपको नॉर्मल कैसे करते हैं, और दूसरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड के लिए पीवी फैक्टर दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और 10% का 1/1.10 से 0.909 का कैलकुलेशन हुआ है। 1/1.10 दैट इज 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर। जितना प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होता है उसमें उतना डिस्काउंटिंग फैक्टर ज्यादा होता है। लॉन्गर द लाइफ स्पैन हायर इज द डिस्काउंट रेट। जितने साल ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लंबा चलेगा उतना उसका डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होता है, यानी कि उसमें से उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है जो इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर शेयर होल्डर्स से, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा तो। और अगर ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों ने किया है तो प्राइवेट बिजनेस हाउसेस, उनके जो ओनर्स हैं उनका भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में they want higher rate of return. So this is discount rate used for discounting the future values, and this factor is evaluated after asking them what returns you want from the project. If people are saying, if owner is saying I want 10% returns from the project, we are going to discount with 10%. If he's saying I want 15% return, what we will do? We will do discounting with a 15%. Okay. नाउ सिंपल पेबैक पीरियड अगर हमें निकालना है, first we will calculate the payback with traditional method. अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी जरूरत नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग को इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, बिकॉज दीज इनफ्लोज आर अनइवन कैश इनफ्लोज। यहाँ पे आप देखोगे कैश इनफ्लोज जो है वो अनइवन है। बिकॉज ऑफ अनइवन कैश फ्लोज हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव करेंगे। फर्स्ट डिजिट आपको सेम लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट सेम आएगी। क्यूमुलेटिव कैसे करते हैं, 4000 लिखा, उसमें 4000 में 3000 प्लस करके 7000। कैसे आया 7000, 4000 प्लस सेकेंड ईयर का इनफ्लो 3000, तो दोनों साल का इनकम हमने प्लस किया। अभी 7000 आएगा यहाँ पे, प्लस थर्ड ईयर का इनकम 11000, फिर नेक्स्ट 11000 प्लस 2000, 13000 प्लस 4000। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है हम लोगों ने देखा था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 10,000। आप मुझे बताओ 10,000 इन दोनों के बीच में आता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10,000 है जो 11,000 और 7,000 के बीच में आ रहा है, यानी सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में आपके रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है,
सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में आपको रिटर्न्स मिलेंगे. नोट डाउन. ट्रेडिशनल मेथड, आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव करने आना चाहिए because the cash inflows are uneven. So this is the practical sum of payback period. तो यहाँ पे 2 years मिनिमम लग रहे हैं 7,000 और उसके बाद 11,000. आपको अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है और यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिकवर्ड इन 2 point something years, यानी 2 साल और समथिंग आपको यहाँ पे लगेगा. 10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी 2 years तो पक्का लगेंगे. तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 years लिख सकते हो आप. 2 years प्लस ब्रैकेट में लिखोगे बाकी कितना कम पड़ रहा है इसमें. देखो 10,000 माइनस 7,000. हमें कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की पहले वो लिखनी है. उसमें से सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट माइनस सेकेंड ईयर इनफ्लो क्यूमुलेटिव इनफ्लो. सेकेंड ईयर क्यूमुलेटिव इनफ्लो 7,000. उसके बाद डिवाइडेड बाय ये जो इनकम है ना थर्ड ईयर की इनकम कितनी है 4,000. तो नीचे थर्ड ईयर का इनफ्लो नॉर्मल इनफ्लो. एक बार वापस बताती हूँ, पे बैक जब भी अनइवन कैश इनफ्लोज होता है आप क्यूमुलेटिव कीजिए. क्यूमुलेटिव करने के बाद प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्वेश्चन में एक बार वापस देखिए और जहां पे कॉस्ट बीच में आ रहा है, अगर कभी कभी तो सीधा आ जाता है यहाँ पे अगर 10,000 होता है तो हम सीधा लिखते हैं पे बैक इन 3 years, लेकिन हमारा 7,000 और 11,000 के बीच में आता है 10,000. तो हमारा 7,000 सेकेंड ईयर तक रिकवर हो रहा है, बाकी 3,000 हम लोग को थर्ड ईयर से रिकवर करना है और थर्ड ईयर का इनफ्लो है 4,000 जो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. इसको ब्रैकेट क्लोज करके 3,000 डिवाइड बाय 4,000, आंसर इज 2.75 years. Payback period is 2.75 years. Okay.